हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसे कि हमने आप सभी से कहा था कि हम आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं सीए, सीएस और सीएमए से रिलेटेड उनको सॉल्व किया जाएगा। और आज हमारे साथ हैं सीए मोहम्मद जैद खान साहब। थैंक यू। तो भाई, सबसे पहले अपने बारे में कुछ आप बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। Hello Aligarh, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zaid Khan and I am chartered accountant. Thank you so much Shay for inviting me here in your intelligence commerce classes. मोस्ट वेलकम सर। Yeah, and I think this is the golden opportunity for all of us to understand that what are the various career options, means courses which you all people can pursue after 12th or after graduation, and what are the career options after those professional qualifications like CA, CMA, CS, CFA and other professional courses, right? Okay, so let's start. My name is Mohammad Zaid Khan and I am born and brought up in Aligarh, and I did my schooling from Union School, ABK Union High School, which now works under Aligarh Muslim University, right? After that I did my graduation. So I have done two graduation, BCom and BBA. One is BBA was regular and BBA was correspondence. So you guys may not confuse that how I have done two graduation and how it was possible. So it is possible. So there must be some gap between both of them, right? And apart from graduation, so during the graduation when I completed my 12th class and I started doing graduation, I entered into the graduation. I took admission in CA, Chartered Accountancy, in December 2009, right? And I appeared in December 2009 and the result was out in January 2010. So that was the first step towards the CA qualification, and I think it was a big decision of mine at that time, because I am going to tell you at the end of this video that how I was and what kind of a student I was, so that you guys can understand that it is possible for all of you to pursue this course. This is not impossible at all, because I have already read your questions that you guys are asking that how tough it is and is it possible or is it impossible. So this is actually a wrong question. So you people cannot ask that this is impossible, right? So this is possible at all, right? So in January 2010 my result of CPT was out and I qualified CPT in first attempt, right? So and my whole CA was completed in November 2016, and I am also qualified CMA. Earlier it was known as CWA, Cost and Works Accountancy, right? So you people may not confuse with that, so I am telling you both the name, right? So I am holding two professional qualifications, CA and CMA, and apart from them I have also done MCom in taxation and law and taxation, right? So this is all about my professional qualification and my educational background. And as far as my practical working experience is concerned, so currently I am working in a pretty nice US based MNC. From last 3 years I am working in this company, and I have overall 7 years of practical experience, apart from 3 years rich articleship under the CA form, which is required to appear in the CA final examination, right? So I think this is the enough introduction about me. माशाल्लाह जैद भाई, तो मतलब डिग्रियां जमा कर रखी हैं, Yes, CMA, MCom माशाल्लाह, और BCom and BCom BBA। and BBA, and I am also pursuing ACCA, which is the Association of Chartered Certificate Accountant. This is CA this is CA of UK, like CA in India. So this is the highest professional body of UK. So I had actually planned to go there to settle down in UK 2 years back. So I took an admission in ACCA, and I have already qualified almost all the papers. Only last 3 examinations are left to be completed to become a member of that body, right? माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि कभी ये जो जर्नी है ये ख़त्म नहीं होती, आप जब तक चाहें इल्म हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप के अंदर से कुछ करने की, आगे बढ़ने की चाह जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहीं जर्नी कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म होने लगती है। और आप लाइफ में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप हमेशा पढ़ते ही रहें, बट कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ठीक है? अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं लेना चाहते, ठीक है, डिग्री नहीं लेना चाहते, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, तो आप इनफॉर्मल यानी कि आप बुक्स पढ़ते रहिए, ठीक है? तो बुक्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए, मुझे लगता है शायद सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके ऊपर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ बुक्स का होता है, ठीक है? तो मैंने जो इतनी सारी अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, तो उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है, एंड आई थिंक I became so studious, and I am curious to
to acquire to acquire new things, to acquire new knowledge and education, right? So that's why I did these all things. माशाल्लाह। तो मतलब ये कभी सीखना बंद नहीं होता, कुछ ना कुछ नया करते रहें जरूर। कुछ ना कुछ आप नया लाइफ में करते रहें। तो अब बेटा आपके काम की बातों पे आते हैं कि आपने सबसे पहले मुझसे पूछा हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 12th क्लास के बाद। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं इससे पहले बिफोर जंपिंग टू योर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, व्हाट आई विल डू, मैं अभी करता क्या हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो शायद मुझे भी ये चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे नहीं पता थी, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें कोई आपको बचपन में ही आपकी एजुकेशन के दौरान ये चीज़ें समझा दे और अगर आपको समझ में आ जाएंगे, समझ में नहीं आती हैं हमेशा, ठीक है। जो ये एज होती है आपका व्हाट शुड आई से 16 to 24 25, ये जितनी भी इस 25 से नीचे की एज होती है 22-23, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतने समझने वाली बात होती नहीं है कि आपको किसी ने समझाया भी देखो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये गलती तुम मत करो, लेकिन फिर भी हम करते हैं वो गलतियाँ कि तुमने की, हम थोड़ी ये ज़रूरी करेंगे, आपसे हो गई गलतियाँ, हम थोड़ी ना करेंगे, हमारे यहाँ अंदर कुछ अलग बात है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बोलूँगा कि देखो लाइफ में जो भी अच्छा लगता है ना आपको करना, आप उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। देयर आर वेरियस ऑप्शंस टू परस्यू इन योर करियर, राइट। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप CA करो, CMA करो, CS करो। अगर आपने 12th कॉमर्स से भी कर लिया, आप ये देखो कि आपको अच्छा करना क्या लगता है, क्या चीज़ करनी आपको अच्छी लगती है, ठीक है। व्हाट मेक यू हैप्पी, राइट, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, राइट, इन योर लाइफ। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। आई वुड से स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, राइट, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। व्हेन आई एम सेइंग स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, दैट मीन्स थोड़ा मेडिटेशन करो, अकेले रूम में बैठो, अपने आप को टाइम दो सोचने का। मतलब दोस्तों के साथ बैठ के ये नहीं होगा, वो हम भी बहुत बैठे हैं, ठीक है। मैं भी अलीगढ़ से हूँ, तो वो ढाबे पे बैठने वाला सिस्टम और वो सब, दैट्स ऑल। और या लड़कियों के लिए जो चिट चैट होती है कॉलेज में बैठ के या घर में बैठ के, ठीक है। आप अकेले में बैठ के अपने आप से ये पूछो, अपने आप को थोड़ा सा सोचो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि मेरे ही साथ के जो प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव डन सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, CA CWA MBA भी कर लिया, बट उसके बाद में उनको लगता है कि यार शायद मुझे वो करना था, अब मैं वो करूँगा, ठीक है। तो जो वो करना था ना, तो वो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को समझ लो, आपको लगे कि मुझे यार ये अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ इसलिए मत करो कि बराबर वालों का लड़का कर रहा है या रिश्तेदारों में हमारे रिलेटिव्स हैं उनका बेटा वो कर रहा है तो हमको भी करना है, या हम वो कर लेते हैं इसमें पैसा बहुत है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसके लिए पैसा बहुत है, आप करोगे तो आपके लिए नहीं होगा, आप कहोगे यार इसमें तो पैसा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आपकी वो चॉइस ही नहीं थी। तो मेरे हिसाब से यू शुड स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन डिटेल, दैट हाउ व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक, राइट। तो जहाँ तक करियर ऑप्शंस की बात है शुएब, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है, अगर आपने 12th कॉमर्स से नहीं भी किया तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 12th आर्ट्स के अलावा किसी से भी किया, आर्ट्स के बाद में आई डोंट हैव एनी आइडिया दैट पीपल कैन परस्यू दीज कोर्सेज और नॉट, बट यस, आपने मैथ से किया, PCB या PCM है या कॉमर्स है, आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज हैं वो? दीज कोर्सेज आर CA CWA CS, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गए आपके इंडियन कोर्सेज हैं, ठीक है, CA CWA CS। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन भी करियर ऑप्शन ही है, ठीक है, BCom। लेकिन होता क्या है कि अब मार्केट में एजुकेशन इतना ज़्यादा हो चुकी है, लोग इतना ज़्यादा प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ, हायर स्टडीज़ की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं कि आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन BCom करके जाओगे, ठीक है, तो आपको जॉब मिलना उतना आसान नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन मीन्स either you can do MBA from any reputed institute or any from any institute, right, ठीक है। किसी आप छोटे इंस्टीट्यूट से करते हो, जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट होते हैं MBA, उसका कोई फ़ायदा मेरे हिसाब से होता नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा मार्केट में कंसीडर किया जाता नहीं है। क्योंकि जो भी HRs होते हैं ना, दे पीपल आर सो स्मार्ट। हमको लगता है कि HR का काम ऐसा ही होता है, बस गए, ठीक है, इसको ले लो, इसको। दे पीपल आर सो स्मार्ट, राइट, एंड दे आर सो व्हाट शुड आई से reliable, और what should I say, they are so smart for the company, ठीक है। वो कंपनी का पूरा सोच करके चलते हैं। तो अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करते हो, दैट इज़ ऑल्सो करियर ऑप्शन, BCom है, आप कर सकते हो। BCom के बाद में आप जॉब कर सकते हो, बट जॉब मिलेगी कितने की मिलेगी आज की डेट में? मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 लाख से ज़्यादा पैकेज आपको BCom के बाद मिलेगा, ये मैक्सिमम है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ही वो बढ़ेगा। सिंपल है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर हाँ BCom आपने किया है, श्री राम से किया, तो डेफिनेटली आपको कंपनी वहीं से उठा लेगी। तो वो सारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो BCom के बाद में यू शुड परस्यू एनी PG एनी स्पेशलाइजेशन। BCom के बाद में BBA सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, वही हो जाता है।
उसके बाद में आपका आता है सीए। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है, ये टफ़ है। ठीक है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने किया है, और जो जर्नी मेरी रही है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, ठीक है, वो मैं वीडियो के एंड पे ज़रूर बताऊंगा आपको। तो ये आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या बहुत मुश्किल है? वाकई में मुश्किल है ना, जब भी तो पूरे इंडिया में 1.25 करोड़ की आबादी में, 125 करोड़ की आबादी में आप देखिए कि जहाँ पे 125 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे कुछ लाख में सीए हैं। ठीक है, और अगर आपकी सोसाइटी में आप जहाँ रहते हो, अगर आप किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो शायद कोई एक आदमी मिलेगा, तो बड़ी बात है। ठीक तो ये आपने बताया कि भाई 12th के बाद हमारे पास सीए, सीएस, सीएमए और बाकी ग्रेजुएशन में बीकॉम वगैरह तो आपको करनी करना है। तो हाँ, जैसे कि मैं करियर ऑप्शंस की बात कर रहा था, तो सीए देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो वो ऑब्वियसली टफ कोर्स है, बट नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, जिस तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं कि ये होता नहीं है, इसमें लोग पास ही नहीं होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है और उनकी एज बहुत हो जाती है, शादी नहीं हो पाती, ज़िंदगी बर्बाद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ज़िंदगी जो ना वो आबाद होती है, जिनका कंप्लीट हो जाता है ना, तो लाइक मी, मेरा कंप्लीट हो गया है, आई एम लिविंग ए प्रीटी नाइस लाइफ। ठीक है, तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, अर्निंग हैंडसम अमाउंट, राइट। तो और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ मस्त चल रही है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो सीए बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है, और आज भी इसकी देखो डिग्निटी बनी हुई है। कभी कहीं भी जा कर के अगर आप किसी से बोलेंगे ना, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो वो आपको एक डिफरेंट तरीके से ही देखेंगे। ठीक है, वो आप कुछ भी बोल दिए जाके मैंने ये किया, बट जहाँ आप बोलते हो ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इसका आज भी इंटीग्रिटी, जो एक क्रेडिबिलिटी वो बनी हुई है। वो आई थिंक जो 60 साल 65 साल जब से ये शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक वो चीज़ उसकी बिगड़ी नहीं है। उसकी वजह ही ये है कि उसकी पासिंग परसेंटेज बहुत कम होती है, और जो लोग कर पाते हैं वो बहुत सिंसियर होते हैं, उनके अंदर एक जज्बा होता है लाइफ में कुछ करने को, कर गुजरने का, तभी वो कर पाते हैं। ठीक है, आप सिंपली किसी से बोल दीजिए कि बेटा आप सीए करो, तो अगर आप उसके पीछे पड़ जाए वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक जज्बा चाहिए होता है, एक पैशन चाहिए होता है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो सीए के अंदर देखो, सीए जो है बहुत ही कम पैसों में होने वाला कोर्स है, ये इसकी खास बात है। सीए के अंदर फ़ीस वगैरह बहुत कम होती है। ठीक है, मैंने जब किया था तब रजिस्ट्रेशन के 10,000 जाते थे, सीपीटी के 5,000 जाते थे, और आईपीसीसी के रजिस्ट्रेशन के 10,000 होते थे। अगर सीपीटी का एग्ज़ाम होगा तो 500 रुपये की फ़ीस होती थी। आज की डेट में मैं आई कैन गारंटी कि सीपीटी की एग्ज़ाम जो रजिस्ट्रेशन फ़ी 10,000 से ज़्यादा, 10-12 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और आई वुड से दैट आई थिंक आई वुड नॉट टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट किसकी कितनी फ़ीस है। आई विल गिव यू एन आइडिया दैट किसके अराउंड फ़ीस होगी, क्योंकि फ़ीस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, और मैं आपको एक नंबर भी दूंगा बाद में, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं कंफर्म हो पा रही होगी, आई विल डेफिनेटली गोना टेल यू कि ये चीज़ कैसे हो रही है और कितनी फ़ीस है आजकल। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार के बीच में, 10,000 12,000 सीपीटी के रजिस्ट्रेशन की फ़ी होगी। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगा तो 1,500 2,000 उसकी एग्ज़ाम की होगी। फिर ऐसे ही आईपीसीसी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसकी भी फ़ीस 10,000 15,000 होगी। एग्ज़ाम की फ़ीस कभी भी मेरे ख्याल से 4 पेपर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सीपीटी जो होता है फाउंडेशन, उसमें 4 पेपर होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंट्स होता है, और लॉ होता है। ठीक है, तो जब मैंने किया था तो तब थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो तब से अब तक थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो 4 पेपर होते हैं, उन 4 में आपको 50%, मोर देन 50% आपको स्कोर करना होता है टू क्वालिफाई। ठीक है, उसमें कोई सीट्स का सिस्टम नहीं होता कि इतनी सीट्स होंगी तो उसमें आपका आएगा तो आएगा, तो कोई मेरिट नहीं बनती है। दे इज सिंपल, आई थिंक यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई दोज एग्ज़ाम। ठीक है, क्वालिफिकेशन की एक वो होती है कि आपको इतना नंबर लेके आने हैं। इसी तरह से फिर आईपीसीसी आ जाता है उसमें। तो आईपीसीसी के अंदर आपके 2 ग्रुप होते हैं, इसमें ग्रुप वाइज होता है। ठीक है, तो 2 ग्रुप होते हैं शुएब। उसके अंदर एक ग्रुप होता है 4 पेपर होते हैं, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर होते हैं। ये तब भी सिमिलर था, अब सिलेबस चेंज हो गया, अभी भी सिमिलर है। ठीक है, तो उसमें पहले ग्रुप में आपके अकाउंट्स होता है। ठीक है, आपका एथिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है दूसरा पेपर। तीसरा आपका डायरेक्ट टैक्सेशन होता है। चौथा आपका कॉस्टिंग होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अगर पेपर में वेरिएशन हो जाए आगे पीछे तो वो आप देख सकते हो वेबसाइट पर। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे किस ग्रुप में कौन से पेपर हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाऊँ, बट मैं अभी भी आपको शायद ठीक ही बता रहा हूँ। तो अकाउंट्स है सेकंड ग्रुप में, फिर आपका एडवांस अकाउंट्स हो जाता है,
देन आपका एक IT का सब्जेक्ट हो जाता है, तीसरा सब्जेक्ट आपका होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का। ये आपके 7 पेपर होते हैं, चार एक ग्रुप में, 3 दूसरे ग्रुप में। तो यू गाइज विल नीड टू क्वालिफाई दीज 7 एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई फॉर द CA फाइनल, CA फाइनल, राइट। तो अब इन 7 पेपर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा पैटर्न बता दूं। जो लोग टफ़ कहते हैं वो क्यों टफ़ कहते हैं, क्योंकि उसमें आप इंडिविजुअल पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। लाइक आपने 45 या 50 एक पेपर में ले आए तो वो आपका पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको चारों पेपर एक साथ क्वालिफाई करने हैं। लाइक आपको किसी पेपर में 40 से कम नहीं होने चाहिए और एग्रीगेशन में 200 से कम, 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो इंडिविजुअल में नॉट लेस देन 40%, एग्रीगेशन नॉट लेस देन 50%। तो अगर आपके ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन यू क्वालिफाई दैट ग्रुप, राइट। तो इस तरह से आपका वो ग्रुप निकलता है। लेकिन अगर किसी पेपर में आपके 60 या 60 अबव आ जाते हैं तो वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है अगले 3 अटैम्प्ट के लिए, वो आपको पेपर नहीं देना होता है। उसके बाद में सेकंड ग्रुप में भी ऐसा होता है, यही सिमिलर पैटर्न आपका फाइनल तक जाता है। तो 2 ग्रुप होते हैं, जब वो 2 ग्रुप आप निकाल लोगे तो आप फाइनल में आ जाते हो। बट बिफोर दैट होता क्या है कि आपको फर्स्ट ग्रुप निकालने के बाद में ये आपकी चॉइस है, या तो फर्स्ट ग्रुप निकालने के बाद या बोथ ग्रुप IPCC के निकालने के बाद, जो आपका इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, वो निकालने के बाद में आप आर्टिकलशिप में आपको जाना होता है। 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, जिस वजह से ये कोर्स थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो आपको जब आर्टिकलशिप करनी होगी, वो 3 साल की आर्टिकलशिप CA फर्म में होती है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में, वो किसी कंपनी में या कहीं और नहीं हो सकती। जो CA होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी CA फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, तो उनके अंडर में ही आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। जब आपके 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर 2.5 ईयर यू कैन अप्लाई फॉर दिस CA फाइनल एग्जामिनेशन। यू कैन मीन्स सिट फॉर द CA फाइनल एग्जामिनेशन ईदर फॉर 1 ग्रुप ऑफ फाइनल और बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल। तो आप उसमें दोनों वो एग्ज़ाम में, CA फाइनल के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। सो फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, सेकंड पेपर लॉ होता है, थर्ड पेपर आपका SFM होता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फोर्थ पेपर आपका होता है ऑडिट एंड एश्योरेंस। इसी तरह से सेकंड ग्रुप होता है, उसमें आपका DT होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, लाइक जो अब हम GST बोलते हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे GST नहीं था, इट वाज कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन होता है, फिर उसके बाद में आपका कॉस्टिंग होता है, जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी बोलते हैं फाइनल में। और एक पेपर होता है आपको जिसको हमको बोलते हैं इसका, और उसके लिए एक जोक होता है, इसका हुआ ना किसी का, किसका इसका हुआ किसका। तो इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑडिट। नाउ दिस पेपर हैज़ बीन चेंज्ड इन दी न्यू कोर्स ऑफ फाइनल। तो ये शायद अब इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट हो गया। तो ये पेपर हो, तो फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं। इन दोनों ग्रुप को भी सिमिलर पैटर्न पे आपको नॉट लेस देन 40% इन सिंगल पेपर, नॉट लेस देन 200 इन एग्रीगेशन इन ईच ग्रुप। तो एक ग्रुप में आपका 200 से कम एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, 40% से 40 से कम एक पेपर में, किसी पेपर में भी नहीं होना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए किसी पेपर में आपके 220 नंबर होते हैं, ठीक है, और आपके किसी एक पेपर में होते हैं 39, तो यस आप फेल हैं, आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, जिस वजह से ये एग्ज़ाम बनता है बहुत टफ, जिसको हम बोलते हैं कि टफ है। क्या आपका क्वेश्चन होगा कैसे आपके साथ ये हुआ है? ये बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। फाइनल में मेरे साथ 2-3 बार हुआ, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट हाउ आई फेल्ड दैट टाइम, ठीक है। ऐसा भी होता था कि ऐसा भी हुआ कि 200 के पास हैं और किसी एक पेपर में 40 से कम रह गए। ऐसा भी हुआ है कि कोई पेपर एग्जामिशन होने वाला होता, एग्जाम होने वाला होता था, उस पेपर में 58 मार्क्स, तो मैं सोचता था कि यार अगर 2 नंबर और होते इस पेपर में तो ये पेपर ही नहीं देना होता। और उस पेपर को पढ़ने के लिए फिर मुझे 3 महीने लगाने, 2-3 महीने, फिर उतनी मेहनत करनी, और ये भी नहीं पता अगली बार 58 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यस इट इज़ टफ, बट आप ये देखिए ना कि जो चीज़ आसानी से हो रही है तो वो आप उसकी वैल्यू भी क्यों होगी, उसकी वैल्यू क्यों होगी? अगर UPSC लोग सिविल सर्विसेज करते हैं तो उसको करने के बाद में आपको एक पोजीशन मिलती है, आपका एक रुतबा होता है, पैसा भी होता है, और लाइफ होती है, रेपुटेशन होती है, आपकी बहुत रेस्पेक्ट होती है, उस काम को करने में मज़ा आता है। तो वो इसीलिए ना कि उसको करने में वो टफ़ है। अगर मान लीजिए आप उसको आसान बना दिया जाए तो कोई है हिंदुस्तान के अंदर जो अपने बच्चों को UPSC नहीं कराना चाहेगा, तो उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि आसानी से कोई चीज़ नहीं होती, आसानी से सिर्फ उगती हैं झाड़ियाँ और वो देती हैं तकलीफ़ें। तो अगर अपनी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है।
हैं। तो माशाल्लाह फिलहाल आपने काफी सारे जो बच्चों के क्वेश्चन थे अलग अलग वो एक सी बार ए, में कवर हो गए। हाँ CA मैंने CA के बारे में बता दिया है। अब ये है अब कि मैं CS, CS और CMA के बारे में और इस मैं CFA ज़्यादा के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसीलिए अपनी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो आई थिंक विल हैव टू make other videos to cover up each and every course in detail, right, in other video. तो मैंने CA के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया, इसके बारे में मैं लास्ट में भी बताऊंगा। CMA जो है वो एक CA की तरह, मतलब जैसे CA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ऐसे ही CMA भी है, बट CMA कॉस्टिंग से ज़्यादा कंसर्न है। जो कॉस्टिंग होता है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी चीज़ की कॉस्टिंग करना, ये चेयर बनी कितने की बनी, कैसे बनी और कितने की बनी, ठीक है। तो इसका एक लंबा प्रोसेस होता है कि कॉस्टिंग करनी है किसी चीज़ की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट दिस इज़ मोर रिलेटेड टू कॉस्टिंग। बट ऐसा नहीं होता सिर्फ उसमें कॉस्टिंग पढ़ाई जाती है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब कुछ पढ़ाया जाता है। बट लॉ पे थोड़ा सा फोकस, सॉरी कॉस्ट पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है। अब उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या चीज़ें कैसा है वो कोर्स करना, ऑब्वियसली CA से आसान है। मैं ये तो नहीं कहूँगा CA से मुश्किल, क्योंकि मैंने दोनों किए हुए हैं, तो मुझे मालूम है कि मैंने CWA के लिए, CMA के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि मैं CA कर रहा था तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी, तो मुझे बहुत कम पढ़ना पड़ता था CMA के एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरा बहुत ईजिली हो गया। ऑल्दो वो उतना आसान नहीं है, आपको मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सिंगल CWA कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, तो फॉर श्योर यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट टू, राइट। और उसको करने के बाद में आपको जॉब्स कैसी मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो CS इसी तरह से CS होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी उसका जो रोल होता है, उसकी जो स्टडी है, पहले मैं पूरी वो बता दूं। जैसे CMA में मैंने बताया कि उसके जो सिलेबस, उसका जो कोर्स का जो कंटेंट है वो मोर सिमिलर टू अदर कॉमर्स डिग्रीज होता है, लाइक अकाउंट्स, फाइनेंस और ऑडिट, लॉ, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही सारा सब कुछ होता है, IT, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी में क्या होता है, ये दिस इज़ मोर रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, मीन्स कौन से लॉज कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उन लॉ की कंप्लायंस कैसे होनी है। और मेजरली कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है उसमें लॉ ही पढ़ाया जाता है, उसमें अकाउंट्स भी पढ़ाया जाता है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है, बट उतना फोकस नहीं होता उसमें। उसका जो मेन फोकस होता है वो लॉ पे होता है, ठीक है। और मैंने CS में भी एडमिशन लिया था, मेरा आज भी एडमिशन है, बट मेरा CA CW दोनों कंप्लीट हो चुका था, तो आई वॉज टायर्ड एंड आई वॉजंट इन अ मूड टू टेक एनीथिंग एट दैट टाइम, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ माई माइंड। तो मैं उस टाइम पे नहीं मुझे लगा कि शायद यार आप छोड़ो ये सब और कुछ स्पेसिफिक देखेंगे विच वुड बी सो स्पेसिफिक फॉर माई करियर ग्रोथ, एंड आई विल डेफिनेटली गोना डू दैट थिंग, राइट। क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब मुझे बहुत थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो CS में यही चीज़ होती है, कंप्लाइंस से रिलेटेड होता है, आपकी जो लॉ की कंप्लाइंस होती है। जो लोग CS करते हैं वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, और वो जो कंपनी के एनुअल रिटर्न्स फाइल होते हैं विद द MCA, और जो अदर रिटर्न्स फाइल होते हैं कंपनीज़ के, वो सारा डिपार्टमेंट CS ही हैंडल करते हैं। एंड दिस इज़ ए वेरी गुड कोर्स यू पीपल कैन परस्यू। तो इसके बारे में भी डिटेल में मैं जब आगे वीडियो होगी तो उसमें हम कवर करेंगे। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा देखो ये CA CWA CS का मैंने आपको बता दिया। इसके अदर देन दैट ACCA होता है, जो मैंने आपको बताया कि UK का CA एक तरह से आप समझ लें, ये UK का CA है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने वाली डिग्री है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इसी तरह होता है CPA होता है चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, ये होता है आपका US से होता है, ये US का CPA है, लाइक CA इन इंडिया, ऐसे ही ये US के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या इंडिया में हमें करना चाहिए CPA, क्या हमें इंडिया में रह के ACCA करना चाहिए, इनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी फ़ीस क्या है, इनके एग्ज़ाम कैसे होंगे, और इनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा एग्ज़ाम के बाद, इसके बाद हमारा करियर ऑप्शन क्या है, उस सब में मैं अभी नहीं जाऊंगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ही करूंगा सबके लिए, कि मुझे पता है अगर मैं 4 घंटे की वीडियो बना लूँ तो वो इनफ नहीं होगी, जितना मुझे पता है इसके बारे में बताने के लिए वो इनफ नहीं होगी। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट बीइंग स्पेसिफिक टू CA, राइट, एंड सम अदर फ्यू ऑप्शंस। तो ACCA CPA भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है,
CA CMA की तरह। उसके बाद जैसे CFA आता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ यही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विच यू पीपल वुड नॉट नो, मीन्स विच यू पीपल डोंट नो, और आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बट वो आपके लिए सुटेबल नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक यू शुड नॉट नो दोज ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जैसे CFA का, शेब ने CFA का बोला, एंड आई थिंक देयर वाज ए स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन CFA, राइट। तो CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म है, और ये फाइनेंस का कोर्स होता है। इसका जो स्पेसिफिक एरिया है, जो फोकस है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे। जो लोग इसको करते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं। क्या कहीं और भी जा सकते हैं? इसको करने के बाद किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, बट ये वही वाली बात होगी ना कि हार्ट के सर्जन हो आप, हार्ट का स्पेशलिस्ट हो, और फिर आप जा रहे हो नज़ले बुखार का काम करने, या कुछ और आप हड्डी का काम करना शुरू कर दिया, हड्डी के पेशेंट देखना शुरू कर दिया, या कुछ कर दिया, तो वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन कोर्स है फ्रॉम द US फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट मीन्स द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंस ऑफ द कंपनीज एंड ऑल, तो उसी से स्पेसिफिक है। कैसे कर सकते हो? इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ग्रेजुएशन, आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, और आप अगर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी हो, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तो भी आप इसको परस्यू कर सकते हो, बट यू शुड बी ग्रेजुएट, यू शुड हैव बीन ग्रेजुएटेड बिफोर अपेयरिंग फॉर द फाइनल लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ CFA। तो CFA बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं आपसे कहूँगा कि मैं ये भी करना चाहता था, बट मैंने कहा ना कि सब कुछ मैं नहीं कर सकता, और ज़रूरत भी नहीं करने की। तो I'll have to I was actually required to be specific in my life, so that's why I did not take these all things। तो मुझे लगा कि शायद मेरे पास ये सब करने का भी टाइम नहीं है, आई शुड फोकस ऑन माई कॉर्पोरेट जॉब फॉर नाउ एटलीस्ट। तो CFA में 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट लेवल थोड़ा आसान होता है, निकल जाता है, मतलब जैसा मैंने लोगों सुना है, आई हैवंट डन दैट, सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ एग्जैक्टली द टफनेस ऑफ दिस एग्ज़ाम, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि ये एग्ज़ाम भी कोई आसान नहीं है, बट आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। आपको क्या चाहिए करने के लिए, चाहे आप CA करना चाहते हो या CFA, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, आपको हार्डवर्क, आपके हार्डवर्क में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लेवल फर्स्ट में अगर आप मेहनत करते हो निकल जाएगा, लेवल सेकंड थोड़ा टफ होता है, लेवल थर्ड थोड़ा सा सिमिलर टू लेवल सेकंड होता है। तो अगर आप 3 प्लान कर रहे हो, 3 साल स्पेंड करना, अगर आप 3 साल स्पेंड कर सकते हो, तो आई थिंक you should go for this course, but before that you should explore yourself that what exactly you wanna do in your life, is it exactly the same thing you want to do। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या किसी ने बोल दिया CFA कर लो, बहुत अच्छा जी कर लो, बहुत बढ़िया, हमने भी, हमारे चचा के लड़के ने किया, आप भी कर लो, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप गए मार्केट से कुछ खरीद लाया। यू विल हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स to qualify these examination, and in between of any examination if you left that thing, definitely it will reduce and come down your confidence level, right। and मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आप हमेशा प्लानिंग से चलो। तो CFA कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फीस, ये जितने ही फॉरेन कोर्सेज हैं, इन सब की फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। दीज आर नॉट इंडियन कोर्सेज, एंड दे टेक फीस इन डॉलर्स, इन पाउंड, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आप ACCA में एडमिशन लेते हो, तो ACCA की एक एग्ज़ाम की फ़ीस, सिर्फ एग्ज़ाम की, रजिस्ट्रेशन छोड़ दो, सिर्फ एक एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो 20,000 के आसपास होती है, ठीक है। और उसके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस फिर वो लाख में होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप CPA की बात करें, तो CPA की एक एग्ज़ाम की फ़ीस 45 to 50,000 होती है, सिर्फ एक पेपर की। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, जो अगली वीडियोस होंगी वो स्पेसिफिक होंगी फॉर ए वन पर्टिकुलर कोर्स। तो उसमें आप डिटेल में समझोगे कि आपको ये कोर्स में हमें कितनी फ़ीस लग रही है, कितना हमारा खर्चा हो रहा है, और हमें एक्चुअली करियर ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं, ठीक है। तो CFA में मैंने आई थिंक जो बताया वो इनफ है, आप कर सकते हो। रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की बात कर सकते हो, ठीक है। 3 लेवल्स होते हैं, और फीस जो है आप ये मान लो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही अराउंड 1 लाख अराउंड आपकी फ़ीस शायद उतना लग जाता है। उसके बाद में फिर जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो फिर उन एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। अच्छा भाईजान, एक जो क्वेश्चन है वो एलिजिबिलिटी का है, तो मेरे ख्याल से जितने भी अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब 12th के बाद हो जाएंगे आराम से। देखो, CA CMA CS एंड CA CMA CS
एंड ACCA, ये 4 कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हो। ACCA तो आप 10th के बाद भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कुछ 10th के बाद पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि 10th के बाद, क्योंकि उतनी ज़्यादा समझ होती नहीं है, तो वो जस्ट ऑन दी हीट ऑफ द मोमेंट कि कोई बंदा कर रहा है वहाँ पे, चलो वी शुड ऑल्सो टेक दिस कोर्स, तो वो चीज़ थोड़ा सा वेयर्ड हो जाती है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर दैट थिंग, फॉर दैट बिग थिंग आफ्टर जस्ट क्वालिफाइंग 10th क्लास, राइट। तो मैं आपसे कहूँगा आप क्या करो कि आप ACC, अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हो 12th के बाद हो जाएंगे चारों। CPA CFA नहीं हो सकते, CPA नीड्स एटलीस्ट ग्रेजुएशन प्लस मास्टर, तो उसमें पेपर भी कम होते हैं, 4 पेपर देने होते हैं CPA के अंदर आपको, ठीक है। CFA के लिए आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट चाहिए, और ACCA आप कर सकते हो। ACCA, CA, CWA, CS एंड ACCA, दे ऑल कैन बी स्टार्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग 12th क्लास। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछना चाह रहे थे कि CA जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो BCom के बाद ज़्यादा बढ़िया रहेगा, साथ साथ चला लें? देखो, व्हाट आई वुड से, जो CA कोर्स है ना, दैट आई थिंक यू शुड स्टार्ट आफ्टर 12th क्लास, क्योंकि BCom के बाद क्या होता है ना, ग्रेजुएशन के पास बंदे में ऑलमोस्ट शेप आ जाता है, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, उसके पास में एक ऑप्शन होता है, वो सोचता है कि यार 2 साल लगा करके मैं MBA करूं और मैं सीधा जाता हूं मार्केट में जॉब करता हूं, मैं क्यों इतना अब स्ट्रेस लूँ, क्योंकि CA में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप ग्रेजुएशन के बाद शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आपकी एज ओवर हो जाएगी, मार्केट के लिए भी, शादी के लिए भी, हर चीज़ के लिए ओवर हो जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम जॉब यू शुड स्टार्ट आफ्टर 12th। दिस इज़ माई पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू। तो कोई परेशानी नहीं होगी मतलब अगर दोनों चीज़ साथ में कर ली जाए? आप देखिए 12th के बाद में आप शुरू करिए, आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम शुरू करिए, फाउंडेशन दीजिए। अगर आपका फाउंडेशन निकल जाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में जैसे भी निकलता है, उसके बाद आप IPCC की तैयारी शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आपका IPCC का फर्स्ट ग्रुप निकल गया तो फिर आपको जाना होता है आर्टिकलशिप में, एंड यू कैन नॉट परस्यू एनी रेगुलर डिग्री अलॉन्ग विद योर आर्टिकलशिप, यू विल हैव टू डू इट बाय कॉरस्पॉन्डेंस। तो उसमें दिक्कत, बस प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो यहाँ होती है कि आपको वहाँ पे फिर ग्रेजुएशन ड्रॉप करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोई भी रेगुलर ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लें, और जब आपको लगे कि आपका फाउंडेशन और IPCC 1-1.5 साल में कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए फिर आप कुछ परमिशन ले सकते हैं, उसको आप बीच में ना छोड़ें, थोड़ा डिले कर लें आर्टिकलशिप में और ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि CA करते हैं, उसके साथ ग्रेजुएशन करते ही नहीं है, तो जब आप जॉब के लिए जाओगे वहाँ प्रॉब्लम आएगी। वो आपसे ऑब्वियसली पूछेंगे ग्रेजुएशन है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से यू शुड गो आफ्टर 12th। अच्छा, एक क्वेश्चन ये काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर सैलरी के बारे में बताइए, CA जो लोग करते हैं, सैलरी तो पैसा बहुत मिलता है, तो क्या सैलरी होती है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक हमसे सभी पूछते हैं कि यार बड़ा पैसा होता है, बड़ा पैसा होता है। एक तो बड़ा पैसे की कोई डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है, और जहाँ तक पैसे की बात है तो अच्छा पैसा होता है, इसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आज की डेट में देखो आप, आई एम जस्ट बीइंग स्पेसिफिक टू फॉर CA, राइट। तो अदर करियर ऑप्शंस के लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो CA अगर आप करते हैं तो देखो आज की डेट में जब मैंने किया था तो उस टाइम पे एवरेज पैकेज होता था, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years व्हेन आई क्वालिफाइड CA, सो दैट टाइम द पैकेजेस वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नाउ, राइट। तो उस टाइम पर पैकेजेस जो थे 6 to 7 लाख अराउंड होता था फ्रेशर का, CA फ्रेशर का। आज के डेट में जो CA फ्रेशर का पैकेज है वो मार्केट के अंदर 8 to 10 के बीच में है। अब देखो इसमें डिपेंड क्या करता है, इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है। कुछ कंपनीज होती हैं वो जो कैंपस में अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, या टॉपर्स नहीं कहना चाहिए, उनको जो पसंद आ जाते हैं, और टॉपर्स भी होते हैं उसमें ऑब्वियसली, तो उनको वो 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक के पैकेज पे लेकर के जाते हैं फ्रेशर को ही। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 15 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 12 लाख पे भी लेके जाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। अब उसमें एवरेज पैकेज मैं आपको बता सकता हूँ, आज की डेट में अगर किसी ने CA क्वालिफाई करा है और चाहे 3, 4, 5 अटेम्प्ट में भी किया हो, तो एवरेज पैकेज 8 to 10 है। तो अगर आज की डेट में आपको CA करने के बाद 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, 9 या 10 लाख का, ऑलमोस्ट आपकी 70-80,000 से शुरुआत हो रही है, तो बहुत अच्छा है। पैसे कितने लगे आपके? बहुत कम। अगर आप IIM से MBA भी कर लेते हैं 35 to 40 लाख लगा करके, 30 लाख लगा करके MBA करते हैं, तो वहाँ भी सबका पैकेज कोई 40 लाख 50 लाख नहीं होता है। वहाँ भी एवरेज पैकेज जो 15 to 20 है, मतलब कुछ लोगों का 12 से 15 भी होता है, कुछ का 15 से 20 भी होता है। तो उस हिसाब से तो आई थिंक इट्स रीज़नेबल, कोई इसमें कोई, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्टिंग आपकी 9 से 10 आज की डेट में होती है, लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग
5 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, उनका पैकेज कितना होता है? बाय एक्सपीरियंस आपका पैकेज बढ़ेगा, सैलरी पैकेज आपका बढ़ेगा, ठीक है। फ्रेशर का पैकेज ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आपका 5 साल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पैकेज है वो 15 से 20 हो जाना चाहिए। मतलब आपका 1.5-2 लाख रुपए महीना सैलरी 5 साल के अंदर, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस आपको है तो 1.5-2 लाख रुपए महीना सैलरी आपकी बहुत आराम से होगी। तो 1.5-2 लाख जो 1.5 लाख एंड 2 लाख इज हैंडसम अमाउंट करंटली। व्हाट आई थिंक, अगर आपने सीए करा इंडिया के अंदर, दिस इज़ ए हैंडसम अमाउंट, दिस इज़ ए हैंडसम सैलरी फॉर एनीवन। अगर आपने सीए करा है तो ये बहुत अच्छी सैलरी है, 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे इतना मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपसे बोलूँगा कि स्कोप जो होता है वो कभी किसी हमेशा सिर्फ डिग्री का नहीं होता, वो स्कोप उस बंदे का होता है, ठीक है। उस डिग्री की बेस पे आप इंटरव्यू में जाके बैठ गए, आपकी जॉब भी हो गई, आपको अच्छा पैसा भी मिलने लगा। अब उस जॉब में जाने के बाद आपने मेहनत ही करना छोड़ दी, आपने अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया, आपने अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, आपने कोई भी डिग्री की हो कुछ भी किया हो, अगर आपको कॉर्पोरेट में वर्क करना है एंड यू आर नॉट गुड विद योर कम्युनिकेशन, तो मुझे लगता है इट्स गोना डेफिनेटली इम्पैक्ट and harm your profile, your position and everything, means आपको करियर ग्रोथ तो नहीं मिल पाएगी। अब आप ये सोचो कि कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश, डेफिनेटली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ही काम हो रहा है वहाँ पे, हिंदी में तो काम ही नहीं हो रहा, उर्दू में, हिंदी में या उर्दू में तो काम ही नहीं हो रहा। हमें हिंदी उर्दू आनी चाहिए, हमारी मदर लैंग्वेज है, सब कुछ है, ठीक है। बट अगर हमारा कॉर्पोरेट जो वर्क है वो ही इंग्लिश में हो रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क द क्वेश्चंस एंड इन द इंटरव्यू। और एमएनसीज होती हैं, सिंपल सी मैं आपको बात बताऊँ, मैं यूएस एमएनसी में काम करता हूँ, यूएस बेस्ड एमएनसी में। द पीपल आई एम वर्किंग विद, दे ऑल आर फॉरनर्स, दे आर ऑल आर यूएस बेस्ड एंड दे ऑल टॉक इन यूज टू टॉक इन अ वेरी डिफरेंट एसेंट। मतलब हर बंदे का डिफरेंट एक्सेंट है, और वो क्या बोल के निकल जाते हैं वो आप अगर आपको अभी बात करा दी है समझ में भी नहीं आएगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, तो वो क्या बोल के निकल जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे साथ में थे सीए में, उन्होंने सीए करा, फर्स्ट अटैम्प्ट में किया, ठीक है, और बहुत कम एज में कर लिया, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी वीक थी और ना ही उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, कॉर्पोरेट में तो नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सीए प्रैक्टिस शुरू कर दी, या उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया, ठीक है, या वो ऐसी इंडियन कंपनीज़ में काम करते रहे जहाँ पे दे डोंट नीड गुड कम्युनिकेशन, राइट। तो ये चीज़ होती है। तो बंदे का स्कोप होता है, उस इंसान का स्कोप होता है जिसने वो डिग्री की है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, वो बंदा अच्छा है, ठीक है, और भले उसके मार्क्स कम होंगे, लेकिन अगर वो बंदा अच्छा है और वो उस क्वालिफिकेशन को करने के बाद भी अगर वो मेहनत कर रहा है, अपने आप को ग्रूम कर रहा है, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प हिम और हर इन द करियर ग्रोथ। तो ये चीज़ है। तो सैलरी स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया ये क्या। तो भाई अब बात ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा वाला अच्छा है, विच वन इज बेस्ट। देखो, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें हलवा मिल जाए, बस वही वाला खाना है। अच्छा, तो देखो, हलवा खाना है तो हलवा तो कुछ नहीं होता, घर में बनाइए खाइए। और करियर में कोई हलवा नहीं होता। जितना आप गुड़ डालोगे, मैं एक देसी मिसाल आपको दूंगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। जितना भी आप मेहनत करोगे लाइफ के अंदर, वो अगर मैं CA CWA और इतनी सारी डिग्रीज करने के बाद still I am doing a professional qualification from UK and planning to go there and to pursue an MBA from a reputed institute, right. So there obviously there is a reason behind that, right, and that's why I'm trying to go there to pursue that education, that qualification, that degree from there. तो ऑब्वियसली आसानी से तो कुछ नहीं होता। अगर वाकई में हलवा बना लो, खा लो, मतलब कुछ आसान कर लो, तो वो तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं सिंपल आपसे बोलूँगा, आपको कुछ स्पेशल चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा अरे कर लो सब हो जाएगा, सब बहुत आसानी से होता है, नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आसान, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे होती हैं, और वो कहते हैं सब आसान है, बहुत आसान है। आसान है आपकी मेहनत के बाद, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। बिना मेहनत के तो आपसे कोई पूछेगा ही नहीं आप हो कौन, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ के किसी न किसी फेस में। तो CA CWA या CS, इनमें से क्या करें, दैट वुड बी डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप एक्सप्लोर कीजिए। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में अपना नंबर भी शेयर करूँगा या लिंक शेयर करूँगा टेलीग्राम का, या टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर करूँगा। एंड आई विल क्रिएट ए ग्रुप जहाँ पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको CA करना है, ऑब्वियसली CA में करियर ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, CA की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज, मार्केट में लोग जानते भी हैं। प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप सिर्फ, अगर आपको प्रैक्टिस में जाने का है तो CA में प्रैक्टिस का ऑप्शन जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रैक्टिस का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है CA के अंदर,
ठीक है, उतना CMA में नहीं होता या CS में उतना नहीं होता जितना CA में होता है, ठीक है, जो मुझे लगता है, ठीक है। ऑल दो CS के अंदर कंप्लाइंसेस होते हैं तो CS भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसमें भी स्कोप काफ़ी है। बट CA में से अगर आप कंपेयर करेंगे तो CA में बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं इन कंपैरिजन टू CA, क्योंकि CMA के अंदर जो ऑडिट वगैरह होता है वो सिर्फ कॉस्टिंग का होता है और वो भी उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, उसकी लिमिट होती है, तो उतना फ्रीक्वेंट वो ऑडिट हर कंपनी का कॉस्ट ऑडिट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस में जाने का शौक़ है तो आप CA कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको CS में ज़्यादा मज़ा आएगा, वो कंप्लायंस रिलेटेड है, और CA जो है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग। देखो CA के बाद में जो आपके पास करियर ऑप्शन रहते हैं, शायद उसमें क्वेश्चन था कि करियर ऑप्शन क्या होते हैं। आप ऑडिट स्पेशली ऑडिट में जो जाते हैं वो सारे CA होते हैं, ठीक है। जो बिग फोर्स होती हैं आपकी KPMG, डिलॉयट एंड EY, ये सारी कंपनी जो होती हैं वो CA को हायर करती हैं फॉर दी ऑडिट। ऑडिट में CMA नहीं जाते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं मैं तो कहूँगा, ठीक है। और CS भी नहीं जाते हैं, ठीक है, ऑडिट में नहीं होते हैं। कहीं कोई एक्सेप्शन होगा तो आई कैन नॉट से, बट नहीं जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से CA इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, अकाउंट्स फाइनेंस में जा सकते हैं, FP&A में। उसके अलावा आपका आप ट्रेजरी में भी CA होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेजरी के अलावा आप कॉस्टिंग में भी CA होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस आप कर ही सकते हैं। तो जो भी करियर ऑप्शन आपको मतलब मीन्स आपको CA कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपको चूज़ करना है तो देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ ऑप्शन फॉर यू टू गो आफ्टर दैट। और बाकी CA और CS में से क्या आपको चूज़ करना चाहिए, ये एक टफ क्वेश्चन है। आई कैन नॉट एक्चुअली आंसर एग्जैक्टली। सबकी अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है, सबकी अपना एक मज़ा है हर कोर्स को करने का। और अगर आप मुझसे कहो कौन सा करना चाहिए, मैंने तो दोनों की, आप तीनों कर लो। अच्छा, हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज़ होती है, तो आपको क्या लगता है मतलब CA करने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर, या CS करने के लिए क्या होना चाहिए जो आप एनालाइज करें अपने अंदर? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शिव। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि ऐसे जो मैं चाहता था वो यही कि इसी टाइप के क्वेश्चंस हों, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। देखो क्या होना चाहिए ये मैं इसलिए अच्छे तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए पैशन और कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट होना चाहिए उस चीज़ से, मुझे ये करना ही करना है। आपके घर वाले भी अगर आपको मना कर रहे हो कि बेटा अब ये छोड़ दो, ठीक है, आपसे नहीं होगा, आपको तब भी नहीं छोड़ना है। अगर ये कमिटमेंट आपकी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये चाहिए। आप सोच रहे हो टैलेंट उतना नहीं चाहिए जितना आपको, इफ़ यू आर नॉट मच गुड विद द नंबर्स दैट्स फाइन, बट आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस चीज़ को लगातार करने के लिए। कि आप गिर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, आप फिर भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। और किसी भी चीज़ को जब तक आप परसिस्टेंटली नहीं करोगे तो वो नहीं होगी, ठीक है। और CA तो नहीं होगा, कुछ भी हो जाए CA ये एग्ज़ाम कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। आप भले, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो DPS के टॉपर हैं, उन्होंने DPS से टॉप किया, सिटी टॉप किया, स्टेट टॉप किया, और वो फेल हुए हैं CA के एग्ज़ाम में। फाइनल में 2 नहीं 3 बार 4 बार 5 बार फेल हुए। मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को। मैं खुद CA फाइनल में फेल हुआ हूँ। मैं ही नहीं कहूँगा मैं फेल, मैं फाउंडेशन में IPCC में फेल नहीं हुआ, बट फाइनल एग्ज़ाम में मैं भी आई वॉज स्टक इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ CA फाइनल बैडली, राइट। तो ये आपको कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कि आपको ये करना ही करना है। अब करियर का तो माशाल्लाह आपने बता दिया। करें फिर फ्रॉम वी कैन गेट बेस्ट कोचिंग फॉर CA। ओके, कोचिंग कहाँ से? हाँ, तो कोचिंग का मैं आपको बताता हूँ। देखो जो इसका हब है वो हर स्टेट में कहीं ना कहीं है। CA का जो सबसे बड़ा हब माना जाता है वो लक्ष्मी नगर माना जाता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग्स हैं, और जो फेस टू फेस क्लासेस होती थी शुरू से वो वहीं होती थी लक्ष्मी नगर के अंदर। बेंगलोर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, मुंबई के अंदर भी हैं, सब जगह अलग अलग स्टेट में हैं। बट यस, आई कैन टेल यू कि छोटे सिटीज़ के अंदर तो नहीं है। छोटे सिटीज़ के अंदर अच्छे टीचर्स आके नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बच्चे उनको पढ़ाने के लिए नहीं मिलेंगे, तो उनका एवरेज नहीं आता है। लेकिन अब चेंज क्या हुआ है, सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। ऑल द गुड टीचर्स मीन्स द फेमस टीचर्स they have already started teaching through ऑनलाइन चैनल। तो उससे क्या है कि अच्छे से अच्छे टीचर्स की क्लासेस आपको अलीगढ़ में बैठ के ही मिल जाएगी, या जिस सिटी में भी आप बैठे हैं उस सिटी में आपको अच्छी से अच्छी कोचिंग अवेल हो जाएगी। तो अगर आपको कोचिंग्स के लिए ऑप्शन देखने हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कौन से टीचर्स आजकल पढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो और फेस टू फेस जा करके, अगर आप इस रीजन में रहते हो यहाँ दिल्ली के आसपास, तो आप लक्ष्मी नगर जा सकते हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो आई डोंट थिंक सो यू पीपल नीड एनी स्पेशल काइंड ऑफ कोचिंग
फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल, यू कैन आई थिंक स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद शुएब। मुझे लगता है कि फाउंडेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा पाएंगे अलीगढ़ के अंदर। जिसको भी फाउंडेशन की इंशाल्लाह करनी हो वो तो यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल, फाउंडेशन की सैटेलाइट क्लासेस हैं बच्चों के लिए। सैटेलाइट क्लासेस भी अगर जिसको करनी है, अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो अलीगढ़ के अंदर सैटेलाइट क्लासेस होती हैं, और घर से भी आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन बहुत हैं। वहाँ जब आप पहुँचोगे तो आई एम हेयर टू टेल यू एवरीथिंग एट दैट मोमेंट ऑल्सो। सो इंशाल्लाह आप लोग फाउंडेशन क्लियर कीजिए, और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कोचिंग के बारे में। जो टेलीग्राम वाला हमारा ग्रुप बनेगा, उस पे आप लोग जो है भाई से जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं बिल्कुल, वो इंशाल्लाह हमेशा आपको मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, तो एक क्वेश्चन वो तो आपने पहले क्लियर कर दिया था। सम पीपल सेज दैट बिकमिंग अ सीए इज लाइक इम्पॉसिबल। वो मुझसे भी बोलते थे कि बहुत ज़्यादा र्यूमर और रियलिटी। हाँ, सो इट इज़ डेफिनेटली अ र्यूमर, क्योंकि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं जब अभी ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको ब्रीफ में करूँगा सिर्फ जर्नी, तो उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एक तरफ और वो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल र्यूमर है, ये मुझसे सबसे ज़्यादा बोलते थे। मुझसे तो इस तरीके से बोलते थे लोग कि आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। मुझसे मेरे खुद के रिलेटिव बोलते थे कि हम आपको लिख के दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ, आज तक लिख के तो दिया नहीं था उन्होंने। वो खुद बोलते थे कि आप कर ही नहीं सकते, तुम तो खैर कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी तो बैकग्राउंड, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है, जो लोग टॉपर्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आती थी उस टाइम पे कि यार जिन लोगों ने किया है वो भी तो इंसान ही है। सही बात, वो भी तो इंसान ही है करने वाले। तो अगर करना है तो वो जब उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। अब बस जो कमिटमेंट उनके अंदर था वो मैं अपने अंदर लेकर के आऊँगा। तो इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी देखो मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है, डिग्री है, बहुत बड़ी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आसान तो नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ है, होता नहीं है और आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे तो खुद के एक टीचर ने मुझसे कहा था कि लोहे के चने चबाने बराबर है, तुम कहाँ इसके चक्कर में फंस रहे हो, और कुछ MBA देखो और निकल जाओ, ठीक है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मैं आपको बताऊंगा, व्हाट आई कैन से टू ऑल ऑफ़ यू, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप अपनी जो सराउंडिंग है ना वो बहुत अच्छी कीजिए। आप अपने आप से अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनती लोग हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों से अपने आप को जोड़ के रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। हेल्प कैसे मिलेगी कि वो एक तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे कुछ करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जो खुद कुछ कर रहा है वो आपको कभी नहीं बोलेगा आप ये मत करो, ठीक है। और जो खुद कुछ नहीं कर रहा है, अगर आप ढाबों पे इधर उधर बैठोगे, जो खुद कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपको क्या कहेंगे, वो हमेशा आपको अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो आपको भी कहेंगे तू कर ही नहीं सकता। अब वो जो ये कहता है ना कि आप ये कर ही नहीं पाओगे, आपका ये लेवल ही नहीं है, आप CA कर ही नहीं सकते, आप MBBS क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, एक्चुअली वो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको ही बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। वो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है अपने बारे में। वो अपने आप को बता रहा है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बारे में इंसान अपने आप को खुद ढंग से नहीं जान सकता, तो सामने वाले को क्या पता आपके बारे में। वो जब आपको जानता ही नहीं है तो आपको कैसे बताएगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं नहीं कर सकता, और वो ले लेते हैं आप अपने ऊपर, और फिर आप भी बैठ जाते हैं कि उसने बोला है मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं जब 12th के बाद में मैं ग्रेजुएशन में था, तो आई सेड टू माई वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड दैट आई एम प्लानिंग टू परस्यू CA, and yesterday I took form and this and that I told to her. So what she exactly said to me, I still remember that कुछ और कर लो, MBA कर लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है, समझिए। और वो बहुत हंसी कि ये सब हम लोगों की बात नहीं है, ये तो अलग ही लोग होते हैं करने वाले, ये होता है वो होता है, आप कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा CPT का जब एग्ज़ाम निकल गया था ना, तब मैंने अपने घर पे बताया था कि मैंने CPT का एग्ज़ाम दिया था, CA का टेस्ट दिया था, और मेरा CA में एडमिशन हो गया, मैंने फाउंडेशन निकाली है। मैंने अपने घर तक नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ है, वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि हाँ अभी तुम कर लोगे, क्योंकि मेरा तो खुद का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा था। तो ये टफ वफ कुछ नहीं होता, अगर आपको करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली ये कर पाओगे इंशाल्लाह। एवरेज इयर्स नीडेड फॉर कंप्लीटिंग CA जर्नी। हाँ बिल्कुल। तो देखो एवरेज जो इसमें टाइम चाहिए होता है ना, वो आप बहुत ऑनलाइन वीडियोस देखोगे, और मुझे देख करके थोड़ा सा गुस्सा भी आता है उसके ऊपर कि क्यों मिसगाइड करो। वो लोग बोलते हैं मोटिवेट करने के लिए 2.5 साल में CA, 2.5 साल में CA, या जिस कोचिंग जिस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, आप 2.5 साल की आर्टिकलशिप किए बिना
उसके फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तो वो कोर्स 2.5 साल में कंप्लीट कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। ये 2.5 साल में कंप्लीट नहीं हो सकता, 3 साल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 साल जब आप लगाओगे आर्टिकलशिप में तो एग्जैक्टली 2.5 साल बाद तो एग्जाम हो नहीं रहे होंगे, तो 2.25 भी हो जाएंगे, 3 भी हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप आर्टिकलशिप ढूंढोगे, आप ले जाओ। तो जो मैं एवरेज आपको टाइम बता देता हूँ, 6 महीने आप जो CPT वाले होते हैं, चलो वो मैं हटा देता हूँ कि 6 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं लोग कि 12th के साथ प्रिपरेशन हो जाती है, चलो वो 6 महीने हटा दो, लेकिन फिर भी वो 6 महीने काउंट करने चाहिए। IPCC में आपको 9 से 10 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 1 साल तो आप IPCC का लगा लिया, अगर आप दोनों ग्रुप दे देते हो एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद में आप आर्टिकलशिप करते हो 2.5 साल की, तब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हो। तो यानी कि 3.5 साल बाद तो आप जाके फाइनल में बैठोगे। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट भी निकाल लिया तो 3.5 से 4 साल मिनिमम लगते हैं। और ये किन को लगते हैं? जो बहुत ही कॉन्फिडेंट शुरू से होते हैं कि बस बैठना निकाल देना है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स की मुझसे बात करोगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप 5 साल मान के चलिए। अगर आपको CA करना है तो आप ये सोच के चलिए कि मुझे 5 साल लगाने हैं, तो 5 साल एक रीज़नेबल टाइम हो जाएगा, ठीक है। रीज़नेबल टाइम हो जाएगा कि हाँ 5 साल के अंदर मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप करके देते हो तो 5 साल तो वैसे भी हो जाने। आर्टिकलशिप ढूंढोगे, उसमें एडमिशन लोगे, तो वो सारा सब कुछ करके अगर 4 मिनिमम बैठता है, मिनिमम टाइम 4 साल है, तो मैं आपसे कहूँगा 5 साल आप एवरेज मान लीजिए कि 5 साल लगते हैं। 5 साल में आपको हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऊपर अब CA CS की बात चल रही थी, तो कुछ बच्चे हमारे कॉमर्स वाले स्पेशली मैथ से बहुत घबराते हैं। हाँ कि भाई पहले बता रही मैथ किस में है और किस में नहीं है। हाँ, देखो मैथ क्या है ना, मैथ जो है मैथ सब में है। अच्छा, फाउंडेशन में तो है, CS में आई डोंट हैव आइडिया, आई विल हैव टू चेक, क्योंकि CS से मैं उतना ज़्यादा जुड़ा नहीं रहा हूँ। बट CA में फाउंडेशन में ही क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू मैथ, बट दैट इज़ नॉट तो किस लेवल टफ तक पार्ट। की मैथ? बहुत ही आसान है, 11th 10th लेवल की मैथ है, बहुत आसान होती है। जिसने 10th 9 10 की मैथ पढ़ी है वो आराम से कर सकता है, कोई टफ नहीं है उसमें। और सिर्फ फाउंडेशन में, ये भी आपको बता दूँ, सिर्फ फाउंडेशन में, उसके बाद कहीं मैथ नहीं है। पूरे CA में कहीं मैथ नहीं है। मुझसे ज़्यादा ख़राब मैथ आपका हो नहीं सकता सबका। अगर आप में सबसे वीक कोई स्टूडेंट है, उसका मैथ मुझसे अच्छा ही होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। तो मैं बैठा हूँ आपके सामने चार्टर्ड, तो ऑब्वियसली सिर्फ फाउंडेशन में मैथमेटिक्स है, उसके बाद में कहीं मैथमेटिक्स नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि जहाँ पर आप इंटर्नशिप करते हैं उससे इफेक्ट पड़ेगा आपके फ्यूचर पे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और नहीं भी पड़ेगा। मैंने जैसे बताया ना, स्कोप होता है वो बंदे का होता है, ठीक है। वो उस बंदे ने अपने आप को वो डिग्री लेने के बाद में कैसे मोल्ड किया, कैसे अपने आप को ग्रूम किया, कैसी कम्युनिकेशन कर ली उसने, ठीक है। तो इसमें जो बिग फोर्स होती हैं वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं, उनको माना जाता है कि आर्टिकलशिप के लिए बहुत अच्छी हैं। ये आपका EY है, KPMG है, डेलॉइट है, ग्रांट थॉर्टन है, और कुछ और टॉप 20s में फर्म आ, टॉप 10 समझ लीजिए। उसके बाद में तो बाकी मीडियोकर फर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप जॉब के लिए जाते हो, तो जब आप ऑडिट के लिए जाते हो ना, एक प्रोफाइल होती है ऑडिट, जो यही सब ऑडिट फर्म होती हैं। ऑडिट फर्म क्या, या तो बिग 4 है, वो भी CA फर्म होती हैं, बिग 4 भी CA फर्म होती हैं, और जो बाकी फर्म होती हैं जो जहाँ आप आर्टिकलशिप करते हो वो सब CA फर्म होती हैं। तो जब आप कंसल्टिंग में जाते हो, कंसल्टिंग फर्म में, तो ऑब्वियसली वो देखते हैं कहाँ से आपकी आर्टिकलशिप हुई है, ठीक है, क्योंकि उनको वही काम कराना होता है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता। अगर आप कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इससे पूरा करियर चेंज नहीं होगा, और 2 साल के पहली जॉब के बाद में डिपेंड करेगा आपने अपने आप को कैसा किस तरह से ग्रूम किया, आपने कम्युनिकेशन अपनी अच्छी की, आपने अपनी नॉलेज को अपडेट किया, आपने अपनी आप उठते कैसे हो, बैठते कैसे हो, बात कैसे करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है। वो उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी। आर्टिकलशिप का पड़ता है फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आर्टिकलशिप मीडियोकर फर्म से भी नहीं है, उससे भी छोटी फर्म से है, ठीक है। और मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवररेटेड है कि आर्टिकलशिप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इतना नहीं पड़ता कि आपका करियर पाथ ही चेंज हो जाएगा। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में फिर देखा जाता है आपका प्रैक्टिकल पोस्ट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो बस इतना है। बाकी यू पीपल कैन ट्राई टू रीच आउट टू good CA firm to pursue your articleship. बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चन थे, वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना है आगे, तो इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप कभी भी CA मोहम्मद जैद खान से अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ कंसल्ट करना हो, तो आप कभी भी कर पाएँ। अब आपके मोटिवेशन के लिए जान लेते हैं कि कैसी रही है भाई की जर्नी, जिसमें उन्होंने अपने CA को परस्यू किया। तो मेरी CA जर्नी के बारे में जैसे आपने पूछा कि कैसी जर्नी रही, तो माशाल्लाह अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रगल था, ऑब्वियसली स्ट्रगल होता ही है।
ठीक है। और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि मैं कभी भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ये मैं आप सारी चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके, जिन लोगों की डाउट थे कि टफ़ होता है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हम ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं, क्योंकि लोग पूछते हैं इस तरह के सवाल कि मेरी परसेंटेज सिर्फ 60% है या 70% है 12th में, सो आई शुड गो फॉर CA और नॉट। तो मैं यही कहूँगा कि भाई मुझसे तो सबकी ही परसेंटेज अच्छी होगी। तो आई वॉज इवन ए बिलो नॉट आई वॉज नॉट इवन ए एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट टिल स्कूलिंग, राइट। तो मैं तो 9th क्लास में, सॉरी 8th क्लास में आई वॉज अबाउट टू फेल। मैं आपको बताऊँ कि मैं 8th क्लास में आई वॉज प्रोमोटेड टू 9th क्लास। आई मीन्स मेरे मार्क्स, कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और जो मेरा पढ़ने लिखने का थोड़ा हिसाब था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शैतान हो चुका था, तो मैं इसलिए मुझे प्रमोट किया गया था 9th क्लास में। तो आप समझ सकते हो मैं कितना अच्छा रहूँगा उस वक्त पढ़ने में। बट किसी तरह से मेरे 12th क्लास तक मैंने किया, और मैं 12th क्लास तक एवरेज ही था, मैंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई अगर नहीं आप की। शेयर करना चाहें अपनी परसेंटेज हाँ, तो मेरी 10th क्लास में मेरी 53% है सिर्फ, और 12th क्लास में मेरी 60% है। मेरी कभी भी ना तो 10th में कोई 70 आई है, 80 आई है, और नहीं। बट उस टाइम पे 12th में या 10th में 60 आना भी बहुत होती थी। तो 12th तक मैं थोड़ा सा सही हो गया था, तो 60% आई थी। बट आप देखो, जिनको डाउट्स हैं, अकाउंटिंग में मेरे सिर्फ 48 मार्क्स हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में मेरे से 48 मार्क्स हैं 12th के अंदर, राइट। बट अच्छा, तो CA उस में टाइम पे जब आप अपनी पढ़ाई करते थे तो आपकी कोई कोचिंग्स वगैरह लिया करते थे या सब सेल्फ वाला हिसाब? 12th तक मेरे पास में कोई कोचिंग नहीं होती थी, मैंने सेल्फ स्टडी की। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से कोई कोचिंग नहीं ली। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प ली होगी, बट जब वो काम नहीं की तो वो भी छोड़ दी मैंने, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी लाइफ में CA, CWA, CMA, BCom, BBA, MCom, मैंने अपनी किसी भी एजुकेशन में, किसी भी डिग्री में कोई कोचिंग, कोई क्लास, कुछ भी मैंने नहीं लिया। मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी किया। वही मैं आपको उसकी जो एक जर्नी रही वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे 48 मार्क्स थे 12th क्लास में अकाउंट्स में, और IPCC में मेरे 91 मार्क्स हैं अकाउंट्स के अंदर, जो कि CA के अंदर पहले तो पेपर ही सॉल्व नहीं होता 100 नंबर का, नंबर आना तो बहुत दूर की बात है। तो CA के अंदर अगर उनके 90+ मार्क्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट्स में, तो ऑब्वियसली यू हैड वर्क हार्ड फॉर दैट एग्ज़ाम। तो कोई किसी राइटर की ऐसी बुक नहीं थी जो मेरे पास ना हो अकाउंटिंग के लिए, तो मैंने उतना हार्ड वर्क किया था। तो इससे आप ये तो समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी पॉइंट से मेहनत करना चाहो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, आपने पीछे अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो आप आगे नहीं कर सकते। आप कहीं से भी अच्छी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। मेरा जो CPT में था, तो CPT के अंदर आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम इन दिस अटैम्प्ट, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ 2 महीने थे तैयारी करने के लिए, और मैथ मेरा बहुत वीक था। तो उस टाइम पे हर सब्जेक्ट में 25% कुछ परसेंटेज लाना मस्त नहीं होता था। आपको सिर्फ एग्रीगेशन में 50% लेके आना होता था उस टाइम पे। तो सो व्हाट आई डिड, जब मैं जिससे मैथ पढ़ता था, तो जिस लड़के से, तो वो कोई टीचर ऐसा नहीं था, दोस्त ही था मेरा, ही वॉज इन BTech दैट टाइम। तो उसने मुझे मैथ पढ़ाना शुरू किया, और मुझसे 3 दिन में उसने हाथ जोड़ ली, भाई हम तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि भाई आप इस अटैम्प्ट के लिए एटलीस्ट मैथ छोड़ दो, क्योंकि टाइम ही नहीं है, आप मैथ छोड़ दो और बाकी सब्जेक्ट तैयार कर लो, तो शायद कुछ हो जाए, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो सोचिए, मैंने सिर्फ 150 नंबर की तैयारी की थी, और उस 150 में से मैं 100+ ले आया था, तो मेरा निकल गया था उसी में। उसके बाद IPCC में इवन आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट, और मुझे ऐसा लगा जब मैं मुझसे बोला घर पे कि आप कोचिंग कर लो दिल्ली जाकर के लक्ष्मी नगर में, तो मुझे लगा कि यार अगर कोचिंग कर ली और फिर भी नहीं निकला तो पैसा भी जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे भी 1.25 लाख रुपए की कोचिंग होती थी सिर्फ एक ग्रुप की। हाँ, आज तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट उस टाइम पे उतने ऑप्शंस नहीं थे, उस टाइम पे बहुत महंगा होता था। आज तो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, दे आर लॉट ऑफ सोर्सेज to get the education, but that time I think I didn't have that much options with me, so I decided to do self study only, क्योंकि मुझे लगा कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लगा करके अगर ये फिर भी नहीं हुआ, निकला नहीं एग्ज़ाम, तो फिर घर पे तो बहुत किरकिरी होगी, फिर कहेंगे फिर। तो इसी वजह से मैंने सेल्फ स्टडी की। तो आपको मैं बता दूं, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं सेल्फ स्टडी में शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती थी, चीज़ें समझ नहीं आती थी। 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक ही क्वेश्चन को लेके बैठा रहता था कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, और हेल्प करने के लिए कोई होता नहीं था। तो बट मैंने वो छोड़ा नहीं कि एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई, एक बार अगर आपको सेल्फ स्टडी की आदत पड़ गई और आपने कर ली, तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है, आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो मैं उस टाइम पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, और मैंने सेल्फ स्टडी से अपना IPCC कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे फिर कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो
स्ट्रगल की बात मैंने आपको बता दी कि जब मैं कर सकता हूँ, मेरे मार्क्स, मेरी परसेंटेज हाई 10th-12th में इतनी है, जब मैं कर सकता हूँ हार्डवर्क के साथ, तो आप सब में जो भी सबसे वीक स्टूडेंट हो मुझसे अच्छा कर सकता है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। तो अगर आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल कर सकते हैं। IPCC कंप्लीट किया, मैं आर्टिकलशिप में चला गया। आर्टिकलशिप भी मेरी बहुत अच्छी फर्म से नहीं है, मतलब बहुत अच्छी से मतलब कोई बहुत मीडियोकर या कोई बहुत बड़ी फर्म नहीं है, बहुत छोटी फर्म से मैंने आर्टिकलशिप की है। और वो इसलिए की क्योंकि मुझे नहीं मिल रही थी किसी बड़े फर्म में। मैं सिंपल आपको बताऊँ, क्योंकि नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं to get the good articleship. So I didn't get a good an articleship with the big firm, big fours or any after that जो भी फॉर्म्स आती हैं, तो मुझे उसमें नहीं मिली, इसलिए मैंने छोटी फॉर्म से की। तो वहाँ पे आर्टिकलशिप के साथ साथ मैंने CA फाइनल की तैयारी की। CA फाइनल के साथ साथ मैंने जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा था, तब भी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की बात इसमें आती है कि बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है, बहुत सारे अलीगढ़ में ख़ासतौर से दोस्त होते हैं। तो फिर उनसे एक लेवल पे आकर के जब आप ऐसी स्टडीज़ में आ जाते हो तो नज़रें चुरानी पड़ती हैं, निकलना पड़ता है, घर से भगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की हैं, क्योंकि मैं इसी टाइप का स्टूडेंट या इंसान का वो मैं रहा हूँ अपनी लाइफ में। 12th क्लास तक तो स्पेशली 12th और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन भी मैं ऐसी कि जो थोड़ा बाहर घूमना फिरना ज़्यादा, ढाबों पे बैठना, यही सब करना, यही सब मैं इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो जब जब मैं CA की स्टडी करने लगा तो मुझे फिर ये सब चीज़ें हटानी पड़ती थी। लोगों को घर से मना करना पड़ता था, रास्ते में मिलते थे तो नज़र चुरा के निकलना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप किसी ऐसी स्टडी में आ जाते हो। उसके अलावा जब मैं CA फाइनल में आया था, तो CA फाइनल ऑब्वियसली टफ़ इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका CPT देते हो तो वहाँ 10-15-20% जो भी रिज़ल्ट रहता है, CPT में थोड़ा ज़्यादा रहता है। और IPCC में उन्हीं 15% में से फिर 10% 15% आगे जाते हैं। मतलब जो फाउंडेशन में जिन लोगों ने क्वालिफाई करा, वो अगर 1 लाख बच्चे बैठे फाउंडेशन के अंदर, और उसमें से अगर 15,000 IPCC में आए, तो IPCC में उन्हीं 15,000 में से फिर 15%, 12 या 15% लगा लीजिए आप, तो वो 1500-2000 बच्चे फाइनल में जाएंगे। और फिर उन्हीं 2000 में से 10% या 15% फाइनल में निकलेंगे। तो आप फाइनल रिजल्ट देखें तो बहुत कम होता है। 1 लाख में अराउंड 200 बच्चे निकले, 200, 400, 500 जो भी निकलते हैं, वही एवरेज निकलता है। अगर वो टॉप टू बॉटम अगर आप निकालोगे तो उसकी परसेंटेज 1% ही निकलती है। और जब मैंने क्वालिफाई किया था, अभी तो रिजल्ट कुछ टाइम से बहुत अच्छा हो गया है, बट जब मैंने क्वालिफाई किया था तो द रिजल्ट वाज सो टफ। मैंने सारे एग्ज़ाम अपने 10, 8% पे ही निकाले, तो उस टाइम पर रिजल्ट बहुत टफ था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनल में जब मैं आ गया था तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि फर्स्ट ग्रुप मेरा निकल गया था। सेकंड ग्रुप में आई वाज स्टक इन द सेकंड ग्रुप एंड आई वाज स्टक बैडली। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो होता ही है, बस आपको अपने आप को संभालना होता है, ठीक है। तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम रुक गया था, 2 अटैम्प्ट में नहीं निकला था, और मैं 1 अटैम्प्ट में तो आई क्राइड अ लॉट, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसमें मेरा निकल जाएगा उस अटैम्प्ट में, क्योंकि वो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और उसमें मैंने 100% प्रिपरेशन की थी। तो उस अटैम्प्ट में मेरा नहीं निकला, और मुझे आज भी याद है सबसे ज़्यादा मुझे लाइफ में अगर कभी अफसोस हुआ था किसी चीज़ का तो उसी अटैम्प्ट में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो वो अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं उस टाइम पे वर्किंग हो चुका था। मैं आपको बताता हूँ कि CA से पहले मेरा CWA कंप्लीट हो गया था। तो CA जब मेरा कंप्लीट हुआ तो CWA कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जैनपैक्ट हायर्ड मी फ्रॉम दिस CMA कैंपस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द जैनपैक्ट। एंड ड्यूरिंग द वर्किंग व्हेन आई वाज वर्किंग इन द जैनपैक्ट, तो आई थॉट आई विल नॉट सिट फॉर दी कमिंग एग्ज़ाम। मतलब मैं एक एग्ज़ाम जो है लैप्स कर दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, नेक्स्ट में बैठूंगा, क्योंकि वो जॉब में छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी मुझे। तो क्योंकि उस टाइम तक इतना सब कुछ हो चुका था, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था, तो वो इतना इजी रहा नहीं था। और जॉब के साथ वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप पढ़ लें और एग्ज़ाम भी दे लें, स्पेशली जब आपने रिसेंटली कोई नया जॉब ज्वाइन करा है तो उसमें इतना ईजी नहीं होता है। तो उस टाइम में मैंने सोचा था मैं छोड़ देता हूँ, बट लास्ट मोमेंट में मुझे लगा कि यार एग्ज़ाम फॉर्म तो मैं भर ही देता हूँ और बाद में मैं देख लूँगा कि देना है या नहीं देना। बट और लास्ट में मैंने कुछ बहाना किया, कुछ ऑफिस में किया, और मैं सिर्फ एग्ज़ाम की छुट्टी मैंने बोल दी, एग्ज़ाम की, और पढ़ा मैंने कुछ भी नहीं था। वो पूरे जो 2-3 महीने का टाइम होता है उसमें मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बट वो एग्ज़ाम के 4-5 दिन थे, उसमें मेरी तैयारी जैसी भी हुई, जो भी हुआ वो मैंने किया, और उसमें भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं रोज़ सोचता था कि छोड़ देता हूँ, अगला अटैम्प्ट दे लूँगा, छोड़ देता हूँ, अगला अटैम्प्ट दे लूँगा। बट मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ में, जो साथ में हॉस्टल में रहते थे उस टाइम पे, वो मुझे रोज़ पुश कर रहे थे कि नहीं कम से कम एग्ज़ाम देने जाओ। मैं पहला एग्ज़ाम जब दे कर के आया तो मेरा पहला एग्ज़ाम ही ख़राब हो गया था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का, मुझे आज भी याद है।
तो मुझे लगा था कि यार इसमें 40 भी आ गए तो बड़ी बात है, तो ये एग्ज़ाम तो गया हाथ से। तो उसके बाद में आई थॉट कि मुझे एक पेपर कोई एग्ज़ाम करा लूँ जो मेरा अच्छा प्रिपेयर्ड है। तो वो पेपर मेरा आईडीटी का था, आईडीटी मेरा अच्छा तैयार था, तो आई थॉट कि ये पेपर मैं एग्ज़ाम कर लेता हूँ, इसमें 60+ ले आता हूँ, उसमें गैप भी था उस बार। तो वो पेपर मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, और उसके बीच में फिर मुझसे मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं तुम बाकी पेपर भी थोड़ा थोड़ा तो कर लो जो 40 आ जाए। तो मैंने बाकी सारे पेपर भी दिए, बट आईडीटी का पेपर मेरा बहुत अच्छा हो गया, और पेपर मेरे 100 बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हुए थे। तो मेरा वो एग्ज़ाम, आईडीटी का एग्ज़ाम जो है वो मेरा 74 मार्क्स उस पेपर में मेरे आए, और उसकी वजह से बाकी पेपर में एवरेज हो गया। ये मेरा लक था उस अटैम्प्ट में कि बाकी पेपर में किसी एग्ज़ाम में भी मेरे लेस देन 40 नहीं आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस अटैम्प्ट में मैंने सीए क्वालिफाई किया। अब सोचिए आप कि जब मैं खाली बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था, नहीं निकल रहा था, ठीक है, मैं जॉब में चला गया, मेरी तैयारी नहीं थी, पढ़ नहीं पाया मैं, सिर्फ वही एग्ज़ाम की ड्यूरेशन का जो टाइम होता है उसी टाइम में मैंने पढ़ा, और मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया, ठीक है। तो कुछ नहीं पता होता कब आपका निकल जाएगा, कब एग्ज़ाम में आपका दिमाग काम करेगा, कब नहीं करेगा। लास्ट एग्ज़ाम से पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, आईडीटी का पेपर था, कि मैं सोच रहा था जाऊँ भी या नहीं देने जाऊँ। तो मैं एक बार तो एग्ज़ाम हॉल में ही छोड़ के बैठ गया, तो छोड़ो यार नहीं हो रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। लास्ट पेपर था आईडीटी का, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की थोड़ी सी और वो एग्ज़ाम दिया, तो मेरा उस अटैम्प्ट में वो क्वालिफाई हुआ। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी किसी भी कोर्स में जाना है, तो आपको ये जो कमिटमेंट है वो आपको रखना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि बीच में बहुत हो गया यार छोड़ दोगे तो छूट ही जाएगा। सीए ऐसी डिग्री है कि अगर आपने बीच में छोड़ दी तो वो ज़ीरो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने एक एग्ज़ाम भी पहले भी छोड़ दी तो उसका वो मज़ा तो नहीं है जो क्वालिफाई करने के बाद रहेगा। आप साइन नहीं कर सकते, आप मॉन नहीं लगा सकते, आप फॉर्म नहीं स्टार्ट कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सीए नाम से पहले नहीं लगा सकते, जो सबका एक ड्रीम होता है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो वो कंप्लीट तो करना ही चाहिए अगर एक बार आपने वो शुरू कर दिया। उसके अलावा जर्नी टफ़ थी, डेफिनेटली टफ़ तो थी, उसमें कोई उसमें छुपाने की बात नहीं है, टफ़ थी, बहुत टफ़ थी। ऐसे मैं सारी चीज़ें तो बता भी नहीं सकती, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि क्या क्या होता था बीच में, क्या क्या चीज़ें होती थी। वो शायद आगे कभी वीडियो करूँगा तो मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें होती थी साथ में, और कैसा उस टाइम लगता था कि यार ये क्या हो गया। रिज़ल्ट आता था, ऐसा लगता था कि मतलब ये तो सारे करे कराए में पानी फेर दिया है 200 में 200, जब 200 की जगह जब 195, 195 या 196 आते हैं, 197 आते हैं, तो वो हिला के रख देते हैं। लगता है यार 4 ही नंबर तो चाहिए थे, या 2 ही नंबर तो चाहिए थे एग्ज़ाम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको परसिस्टेंटली वो चीज़ करते रहनी है, तो बिल्कुल होगी। इसमें कोई इसमें शक नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल होगी। तो हार्ड वर्क चाहिए, और बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, बहुत अच्छी डिग्री है, पैसा बहुत मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने सीए करने के बाद 5 साल मार्केट में लगा लिए, 1.5-2 लाख रुपए महीना सैलरी कहीं नहीं गई। फिर साइड के काम बहुत सारे होते हैं जो आपके पास लोग प्राइवेट कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो सारे भी कहीं किसी का अकाउंटिंग का काम कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी, तो वो आपका काफ़ी अच्छा करियर पाथ एक बन जाता है। उसके अलावा रेस्पेक्ट बहुत है, तो सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक दिस वॉज माई जर्नी, एंड आई थिंक स्पेशली आई टोल्ड यू स्पेशली अबाउट माई जर्नी। जो मेरा बैकग्राउंड है वो मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएं कि हम कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो if you are not a special student, if you are not studious, I wasn't even below average, sorry I was even below average। तो जब मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट होकर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट इसलिए नहीं था कि मैं कोई डफर था, ठीक है, मैं इसलिए था क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, ठीक है, बहुत सिंपल है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं स्मार्ट भी हो गया। तो यही आपके साथ भी होगा। आप अगर करना चाहते हो तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट in everything, whatever you want me to do for you. I am every time, anytime I am available for all of you, and I think there are lot of other people who can help you out, and I had a discussion with all of them, and they told me so many times that we should start something to help the students out for the CWA, for the professional studies. We should motivate them so that they can take those career course options, those courses, because somebody told me before a few days back that especially in Aligarh, he was telling that people students do not take these courses because they know that they have some doubts, they have some they used to hear the rumors, right,
कि ये टफ़ होता है, ये हो नहीं पाता है, इसमें जानबूझ के फेल करते हैं और लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो आई सेड ओके, इफ़ आई कैन हेल्प एनीबडी in regards to CA, CM or any professional studies, I am always here to help you out. And I can take a few names जिनसे मेरी बात होती है कि AMU के अंदर मोहम्मद आसिफ खान है जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में है. he is very genuine and humble guy I know in Aligarh, right? क्योंकि मैंने सुना है लोगों से, मैं उनसे I have never met in person with him, right? I have never met him, but मुझे लोगों ने बताया, मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे हूँ, मेरी बातचीत होती है, बट मैंने लोगों से सुना है स्टूडेंट से कि वो अगर कोई बच्चा बोले, स्टूडेंट बोलता है कि मुझे CPT का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो पैसे तक दे देते हैं. तो वो इतने हेल्पिंग हैं फॉर दी स्टूडेंट्स, राइट? तो वो हैं, उनसे आप, क्योंकि गाइडेंस मेन चीज़ होती है, तो गाइडेंस के लिए आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू. एंड लाइक आई टेक द नेम ऑफ आसिफ सर एंड शुएब सर हैं, बहुत सारे लोग हैं. तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई थिंक इट वॉज ए नाइस डिस्कशन विद शुएब, एंड आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट इन deciding the career path and in deciding the choices in professional courses, right? And मैं अपना मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैसेज भी कर सकते हो. बाकी मैं टेलीग्राम का नंबर आपको दे दूँगा, व्हाट्सअप का भी दे सकता हूँ. तो यू पीपल कैन रीच मी आउट एनी टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, राइट? थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. आई होप आप सभी को ये जर्नी सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा जो भाई ने पूरा बताया. तो इससे आप, मुझे उम्मीद है, ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया जैद साहब कि आपने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त आपने हमें दिया. और इसी वजह से बस आपको मैंने कांटेक्ट किया था कि असल में होता क्या है, जब ये लोग यूट्यूब पर या वैसे किसी के चैनल पर जाके कुछ देखेंगे ना, तो उसमें डीलिंग ज़्यादा उनको मिल सकती है. मतलब अलीगढ़ की लैंग्वेज में आप समझ पा रहे हैं. तो मतलब कुछ बनावटी बातें, या जैसे र्यूमर्स आपने कहा, यहाँ से आपने जो एक्सपीरियंस भाई का सुनाया ना, जो बिल्कुल रियलिटी यहाँ पर बताई गई है, वो चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी. तो देखिए, फेलियर्स भी होते हैं इंसान के. फेलियर जो है बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे लेकर जाता है. ये फेलियर्स ही हैं जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि भाई आप कुछ नया करें और करते रहें. जब तक आप कुछ नया अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको मज़ा कैसा आएगा कुछ नया करने में. तो फेल होने से कभी भी डरे नहीं. और ये सबसे बड़ी मिसाइल या फिर मिसाल आपके सामने बैठे हुए हैं मोहम्मद जैद भाई. और जो CA लगा हुआ है ना नाम के आगे, जब भी मैं खुद यहाँ इनके पास बैठा हुआ हूँ, आई एम फीलिंग मोटिवेटेड. तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देखकर हटेंगे तो ज़रूर आपका ये दिल करेगा कि यार घर वाले हमारे भी कहें कि हमारा बेटा CA है. तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है. और बाकी जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो मैं हूँ, भाई हैं, जितने भी लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस जर्नी को अकम्प्लिश करने में, इंशाल्लाह वो सभी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी. इंटेलिजेंस क्लासेस के थ्रू, हमारे इस चैनल के थ्रू, जो भी हमसे हो पाएगा हम आपके लिए कर रहे हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मोटिवेशनल लगा होगा. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. फिर मुलाकात होगी आप लोगों से. अल्लाह हाफिज़.